چھوٹی چڑیا گوری کوی کے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پڑوسی برا مل جائے تو ساری زندگی کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایک ایسی ہی بری پڑوسن کی ہے۔ ابھی صبح صبح ہی تھی جب گوری کوی چڑیا کا دروازہ پیٹنے لگ جاتی ہے۔ چڑیا دروازہ کھولتی ہے۔ گوری بہن، کیا بات ہے؟ آہستہ دروازہ پیٹے، میرے بچے سو رہے ہیں۔ تمہارے بچے سو رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ وہ جو بڑی شاخ تمہارے گھر کے اوپر ہے اسے کاٹ دو۔ گوری بہن، یہ شاخ میرے پیڑ پر ہے، آپ کو اس شاخ سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے گھر میں 12 بجے تک دھوپ نہیں آتی، پرچھائی آتی ہے اس شاخ کی۔ میرے گھر میں کاٹتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کالو سے کہتی ہوں، وہ کلہاڑے سے کاٹ دے گا۔ نہیں نہیں گوری بہن، میں آج ہی اس شاخ کو کاٹ دیتی ہوں۔ پھر گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیا اپنا کلہاڑا لے کر وہ شاخ کاٹنے لگتی ہے تو چڑیا کی بیٹی گڑیا اسے کہتی ہے، ماما، اگر اس بڑی ڈال کو کاٹ دیں گے تو گرمیوں کے موسم میں ہمارا گھر بہت گرم ہو جایا کرے گا۔ مجھے پتا ہے میری جان، مگر کیا کروں، برا پڑوسی بھی نہ ہو کسی کا۔ وہ گوری کی بچی روز اس شاخ کو لے کر لڑائی بنا لیتی ہے، اور بیٹا جب تک گرمیاں آئیں گی یہ شاخ پھر سے پھوٹ جائے گی۔ پھر چڑیا اس شاخ کو کاٹ دیتی ہے۔ لو بچوں، گوری خوش ہو گئی، چلو اب آلو لینے جاتے ہیں، شام کو آلو کی بھجیا بنائیں گے۔ پھر وہ سب آلو لینے چلے جاتے ہیں۔ چڑیا سارے کام بہت اچھے سے کرتی، وہ اپنے بچوں کو ہر سمے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ گوری، کیا کاٹ دی چڑیا نے وہ شاخ؟ کاٹے گی کیوں نہیں، مجھے وہ اچھے سے جانتی ہے، مجھے نہ سننا ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ مما، چڑیا آنٹی کے گھر سے خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ لگتا ہے کوئی سوادشٹ چیز بنا رہی ہے چڑیا۔ کالو، جاؤ تو چڑیا کو دیکھ کر آؤ کہ چڑیا کیا بنا رہی ہے۔ میں جاتا ہوں اور چڑیا سے تھوڑی مانگ کر لاتا ہوں۔ پھر کالو چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے۔ چڑیا بہن، کیا بنا رہی ہو؟ بہت خوشبو آ رہی ہے۔ کالو، آج ہم نے آلو کی بھجیا بنائی ہے، بہت سوادشٹ بنی ہے۔ کیا مجھے بھی دو گی تھوڑی سی؟ میں بھی تو کھا کر دیکھوں کیسی ہے، کسی برتن میں ڈال دو، میں گھر جا کر کھا لوں گا۔ پھر چڑیا کالو کو تھوڑی سی آلو کی بھجیا دے دیتی ہے۔ کالو، کیا لائے ہو؟ آلو کی بھجیا بہت سوادشٹ ہے۔ پاپا، مجھے بھی دو، پہلے بتا دیتے، اب تو میں نے کھا لی ہے۔ تمہارے پتا جی سے تو کوئی کھانے کی چیز دیکھ کر صبر نہیں ہوتا۔ اب جگو تم جاؤ، چڑیا تمہیں بھی دے دے گی۔ پھر جگو چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ آنٹی، پتا جی نے ساری ہی کھا لی آلو کی بھجیا، تھوڑی سی مجھے بھی دے دو۔ جاؤ یہاں سے، کیا سب باری باری آؤ گے؟ تمہارے پتا جی لے گئے ہیں اور ہم نے ابھی کھانا کھانا ہے۔ نہیں ککو بیٹا، گھر آئے پڑوسی سے ایسا نہیں کرتے۔ لو جگو بیٹا، آپ یہیں بیٹھ کر کھا لیں۔ پھر جگو آلو کی بھجیا لے کر وہیں بیٹھ کر کھا لیتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ ککو اور گڑیا آپس میں کھیل رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ میں بھائی سے تیز اڑ سکتی ہوں۔ نہیں مما، کل دیکھنا میں بہنا سے آگے نکل جاؤں گا۔ مما، بھائی کی چونچ تو دیکھیں، جیسے بلی کی پونچھ ہوتی ہے۔ کالو، جاؤ اور اس چڑیا کے بچوں کو چپ کروا کر آؤ، کب سے بولے جا رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ بچے کھیل رہے ہیں، جاؤ تم ہی جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا۔ پھر گوری کوی چڑیا کے دروازے پر جاتی ہے اور باہر سے ہی کہتی ہے،
यहाँ आस पास कोई और भी रहता है। ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे मेला लगा हुआ है यहाँ। बच्चों चुप कर जाओ, देखो गोरी आंटी तंग हो रही हैं। आप जाएं, क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? आप तो हर समय हमें ही तंग करती हैं। चिड़िया अपनी बेटी से कहो जबान संभाल कर बोले, मैं इसकी जबान काट दूंगी। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, आप जाएं गोरी, अब दोबारा आवाज नहीं आएगी। सुबह हो जाती है और गोरी कौवी अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके चिड़िया के घर के बाहर फेंक देती है। अब चिड़िया उठा लेगी मेरे घर का भी कचरा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से निकलती है, अपने घर के बाहर कचरा देखकर चिड़िया गोरी को आवाज देती है। गोरी, ओ गोरी, क्या ये कचरा तुमने यहाँ फेंका है? मैं पास आकर बताती हूँ। जी हाँ, मैंने ही फेंका है, और याद रखो तुम्हारा घर इस जगह से पीछे पीछे है और ये जगह तो सरकार की है। अगर मैं यही कचरा तुम्हारे घर के आगे फेंक कर कहूँ कि ये जगह सरकार की है, तो फिर तुम एक बार फेंक कर तो देखो, मैं देखती हूँ तुम कैसे फेंकती हो। शोर सुनकर गुड़िया और कुकू भी घर से बाहर आ जाती हैं। आपने रात को सारी हमारी आलू की भुजिया मांग मांग कर खा ली और अब हमारे दरवाजे के सामने कचरा फेंक रहे हो। जाओ बेटा, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। फिर चिड़िया वो कचरा उठाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर दूर पहाड़ों की तरफ जाकर कचरा फेंक देती है। आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि गोरी कौवी उसे कुछ ज्यादा ही तंग कर रही थी। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया क्यों परेशान हो? क्या फिर से तुम्हारी पड़ोसन से लड़ाई हो गई? क्या बताऊं कबूतर, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन कोई ना कोई समस्या। आज तो उसने मेरे दरवाजे के सामने अपने घर का सारा कूड़ा फेंक दिया था। चिड़िया, रोज रोज के रोने से अच्छा है आप एक बार ही रो लें। क्या मतलब कबूतर, मैं समझी नहीं। मेरे घर के पास ही एक बड़ी चील रहती है। वो टूटे हुए घोंसले में रहती है और उसे नया घर खरीदना है। आप अपना घर उसे बेच दें। और फिर मैं कहाँ जाऊंगी कबूतर भैया? मेरे पास 2 घर हैं, उनमें से एक आप ले लें। मेरी भी जान छूट जाएगी बुरी पड़ोसन से और आपकी भी। चिड़िया को कबूतर की ये बात बहुत अच्छी लगती है, तो फिर अभी चलें चील के पास। ऐसे चिड़िया और उसके बच्चे कबूतर के साथ वहाँ से जाते हैं। कितने में दोगी चिड़िया तुम अपना घर? जो आपकी इच्छा चील दी, मैं अपनी पड़ोसन से बहुत तंग हूँ। आप मेरा घर रख लें और जितने पैसे देने हुए दे देना। ऐसे वो बड़ी चील चिड़िया से उसका घर खरीद लेती है और चिड़िया कबूतर के दूसरे घर में चली जाती है। अभी दूसरा ही दिन था जब बड़ी चील गोरी को आवाज देती है। सुनो काली कौवी, मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। चील दी, आप और यहाँ तो और कहाँ जाऊं? मैंने ये घर चिड़िया से खरीद लिया है। क्या? हाँ, और सुनो, ये लकीर लगा दी है मैंने। आज के बाद तुम यहाँ से नहीं गुजरोगी और मुझे जल्दी सोने की आदत है। शाम 5 बजे के बाद अगर तुम्हारे घर से कोई आवाज आई तो जान से मार दूंगी पूरे परिवार को। एक बात और। चील ऐसे बोले जा रही थी और गोरी हाँ में सर हिलाए जा रही थी। गोरी, चिड़िया बहुत अच्छी थी। हम कई बार उससे शाम का खाना भी ले लेते थे और वो तुम्हारी वजह से यहाँ से चली गई है।
हाँ कालू, मगर जो खेल चिड़िया मेरे साथ खेल गई है, मैं उसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। उस जालिम चील ने पहले ही दिन मुझे मेरी नानी याद दिला दी है। अब जीवन कैसे गुजरेगा यहाँ। फिर ऐसे कालू और गोरी कवि बहुत पछताते हैं और चिड़िया कबूतर के पड़ोस में खुशियों भरा जीवन जीती है। गोरी बहन, क्या बात है, आपको पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा। सब ठीक तो है? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरा बेटा जग्गू जवान हो गया है। उसकी शादी करना है मुझे। कोई अच्छी सी और सुंदर सी कव्वी ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, बस इसीलिए परेशान थी। गोरी बहन, मेरी बहन वाले जंगल में एक कव्वी रहती है, चुन्नी है नाम उसका। वो बहुत अच्छी कव्वी है, अकेले ही रहती है। अकेले? क्या माता पिता नहीं है उसके? नहीं, उसके माता पिता तो बहुत देर पहले मर गए थे। अगर आप कहो तो मैं चलती हूँ आपके साथ, हम उस कव्वी से बात कर लेते हैं। तो फिर बात क्या करनी, हम अपने जग्गू बेटे को साथ ही ले जाएंगे, और अगर मुझे वो कव्वी पसंद आ गई तो ब्याह कर साथ ही ले आएंगे। गोरी बहन, अब तो शाम होने वाली है, हम कल सुबह जाएंगे। तो फिर कल कितने बजे मैं जग्गू को साथ लेकर आ जाऊं तुम्हारी तरफ? जब आपका मन चाहे, मैं सुबह घर पर ही होंगी। अब चलो गोरी बहन, शाम होने ही वाली है। फिर गोरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। जंगल में रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू जी, आज मुझे रानो चिड़िया मिली थी। वो बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में कोई कव्वी रहती है। मैं कल जा रही हूँ चिड़िया के साथ उसे देखने। क्यों, क्या देखना है तुमने उस कव्वी का? अपने जग्गू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हें चिंता है नहीं? मैं तो दिन रात अपने जग्गू की शादी के सपने देख रही हूँ। कोई दहेज भी देंगे जग्गू के ससुराल वाले? दहेज तो नहीं मिलेगा। ससुराल में कौन है? वो कव्वी तो अकेले ही रहती है, गरीब सी है, माता पिता मरे हुए हैं। माँ, फिर मैं नहीं शादी करूँगा ऐसी गरीब कव्वी से। मैं तो कोई अमीर सी कव्वी देखकर उससे शादी करूँगा। जग्गू बेटा, ऐसे गरीब पक्षी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। 2-4 दिन सेवा तो करेगी हमारी, फिर अगर तुम्हें पसंद न आई तो कोई और ढूंढ लेंगे। फिर ठीक है मम्मा। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज जैसे ही सूरज अपनी रोशनी बखेरता है, गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया की तरफ जाती है। चलें गोरी बहन? मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारी ही देर है। मैं भी तैयार ही बैठी थी। फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं। गोरी कव्वी तो बहुत खुश थी, उस कारण नहीं कि वो अपने बेटे की शादी करने जा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सेवा के लिए एक कव्वी लेने जा रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते चिड़िया आंटी। नमस्ते चुन्नी बेटी। चुन्नी कव्वी बेटी, ये गोरी कव्वी है और ये इसका बेटा जग्गू है। गोरी बहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, मुझसे बात की तो मेरे विचार में आप आ गई। क्या आप शादी करोगी इस कव्वी से? वो कव्वी शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो और कोई भी नहीं है इस जंगल में, जो आपको अच्छा लगे। गोरी बहन, आप भी चुन्नी को अच्छे से देख लें, बाद में फिर ना लड़ती फिरना। दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 2 पंखों में दुल्हन ही लेकर जाना होगी। चुन्नी कव्वी बेटी, क्या क्या काम आते हैं आपको? आंटी, मुझे सब काम आते हैं। मैं भोजन की खोज कर सकती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत कर सकती हूँ, और मैंने तो नया पक्का लकड़ियों वाला घर बनाना भी सीख रखा है। चलो माँ, घर तो नया बनवाएंगे इस कव्वी से। चुप कर जाओ, मुझे स्वीकार है चिड़िया। तो फिर चुन्नी चलो, हम तुम्हें बिहाने आए हैं, आप हमारे साथ ही चलो। आंटी, आप पहले बैठे तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह ढूंढ कर लाती हूँ। अब अपने ससुराल जाकर ही फल ढूंढ ढूंढ कर लाना। चलो, शाम से पहले पहले हमें लौट कर भी जाना है। ऐसे गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कव्वे के लिए उस चुन्नी कव्वी को बिहा कर ले जाती है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन की खोज को भी निकलना है और शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। तो पास पास के सभी जंगलों में ये कव्वी मिली तुम्हें अपने बेटे की शादी करने के लिए? इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी।
तो फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू अपने ससुर जी के लिए खाने को और सास जी के लिए भी। तो क्या पति जी भूखे रहेंगे? परंतु जग्गू कव्वे जी, मुझे तो इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। 1-2 दिन में मैं सब सीख जाऊंगी, फिर ही मैं जाऊंगी भोजन की खोज में। जब घर से बाहर निकलोगी तो सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर वो कव्वी वहाँ से चली जाती है। उसे तो किसी दिशा का भी नहीं पता था। वो उड़ती उड़ती नदी की दिशा में निकल जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब मैं उन सब के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊँ? मुझे क्या पता अभी इस नए जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा। वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नजर नदी के पानी पर जाती है। वहाँ कुछ आम नदी के पानी में बहते हुए आ रहे थे। वो बहुत खुश होती है। चुन्नी कव्वी वो आम नदी से निकाल लेती है और तुरंत वो आम लेकर वापस लौटती है। अरे जग्गू, तुम्हारी पत्नी तो कितने स्वादिष्ट और रसीले रसीले आम ढूंढ लाई है। परंतु माँ, हमें तो कभी आम मिले नहीं इस जंगल से। आप आम खाएं, पेड़ गिनने से आपको क्या काम। शाम हो जाती है और फिर रात। वो सब सो जाते हैं। चिड़िया, आपको तो अच्छे से पता है गोरी और कालू कव्वे का, फिर क्यों उस छोटी कव्वे की जिंदगी बर्बाद की आपने? कबूतर भैया, मुझे पता तो है कि गोरी और कालू उसे बहुत तंग करेंगे, परंतु आप देख लेना, वो कव्वी अपने प्यार और बुद्धि से सब संभाल लेगी। भला ऐसे पक्षियों के साथ कौन रह सकता है? कबूतर भैया, आप कबूतर हो, कबूतरी नहीं हो। आपको नहीं पता, एक लड़की पक्षी होकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है, वो कव्वी सब करेगी, परंतु अपना घर नहीं छोड़ेगी। तो फिर देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बता रही थी कि लकड़ियों का घर बनाना आता है तुम्हें। हम भी कब से इस तिनकों के घोंसले में जी रहे हैं। अगर तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर, हम भी तो देखें तुम कैसा घर बनाती हो। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन ले आऊं और फिर शुरू करती हूँ। परंतु माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी लकड़ियाँ लाने में। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। तो फिर आप चले जाना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया। पिताजी, आपने भी काम नहीं किया होगा कभी। मैं सब कर लूंगी, मैं अकेले ही लकड़ियां ले आऊंगी। फिर वो कव्वी वहाँ से चली जाती है। बहुत अजीब सी कव्वी है, लड़ाई का तो मौका बनने ही नहीं देती। जो भी कहते हैं सब कर लेती है। माँ, मुझे तो ये एक अच्छी और सच्ची कव्वी लगती है। अगर ये दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, बुद्धिमत्ता तो है इसके पास। फिर वो कव्वी पहले भोजन लेकर आती है। वो भोजन सबको देकर फिर से चली जाती है और फिर घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। वो सूखा घास लाती है, कुछ लकड़ियाँ लाती है और फिर कुछ तिनके। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वो कव्वी एक सुंदर सा घर बना लेती है। रानो चिड़िया भी उड़ती उड़ती वहाँ आ जाती है। चुन्नी बेटी, कैसे लगे आपको अपने ससुराल वाले? सब ठीक है? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती हैं और पति जी तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। गोरी कव्वी बैठी ये सब सुन रही थी और फिर गोरी कव्वी रोने लग जाती है। चिड़िया, आपने तो मुझे बहू नहीं कोई देवी ढूंढ कर ला दी है। आज मैं मान गई कि सास कैसी भी हो, बहू अपने प्यार और बुद्धिमत्ता से सबके दिल जीत सकती है। चुन्नी, मेरी बेटी, आप बहुत अच्छी हो। कल से हम सब मिलकर भोजन लेने जाएंगे और सब काम मिलकर करेंगे। मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।